Hello everyone, welcome to your YouTube channel Love with Biology, and here is your friend Pulkit Mishra, and this is going to our fifth most important part of our chapter The Living World, in which we are finally moved toward the end of our chapter. It may be possible that your chapter will end by today, or if there any topic will left, then we'll cover the topic by the day after tomorrow. So both possibility, I think your chapter will end by today or your chapter will end by the day after tomorrow. So please don't be worried about the ending of the chapter, because we are covering each and every topic with proper immense, right? So what we are doing today, what we'll discuss today is we are discussing about the taxonomical hierarchy. We are discussing about the taxonomy along with phylum, classes, genus, species, and we'll also cover the families. Okay. And what we had discussed earlier in our classes, we had discussed about defining features, we had discussed about characterization features including growth and reproduction, and in defining feature we had discussed about metabolism along with cellular growth. We had also covered the nomenclature, binomial nomenclature, which was given by Carl von Linné and whose name was Carolus Linnaeus, right? So now from today we'll move to the taxonomy, the next branch, right? The next branch is taxonomy, in which we are moving, in which we will know about how different names are, right? How we give different names to different species of plants and animals. So basically taxonomy, we'll understand the meaning of taxonomy initially, then I will tell you the father along with the founder and the person who gave the term of taxonomy. First of all, what is the meaning of taxonomy? Taxonomy is basically derived from the word taxa. Taxa means is to give the scientific name to different categories and species. And the word taxonomy is given by, the term was given by A.P.D. Candolle. And the father of taxonomy is known as Carl von Linné. The founder of taxonomy is also known as Carl von Linné. Carl von Linné, after the binomial nomenclature, was known as Carolus Linnaeus. Okay, his name changed, and he changed his name, and he was very famous to be known as Carolus Linné. Right. Now we are moving towards the basic of conventional and standard taxonomy. How are you giving the name to different species? Do you know about it? So as for the conventional, as for the advanced taxonomy, we have some rules, right? For the conventional taxonomy, what are some rules are? CICM. It means you will first of all characterization, right? Characterization. Then you will identify the species, characterization, identification, classification, and then nomenclature. These four are the pillars or the basis of conventional taxonomy. If you just want to give the name, if you want to give the name to any species, what four things you will follow at the earlier time were the characterization, identification, classification, and the nomenclature. But based on modern taxonomy, okay, based on modern rules, we are moving to the morphology, anatomy. It means the morphology under ka, I mean morphology, anatomy, cell, including the developmental challenges and the phylogenetic relations. What do you understand by phylogenetic relations? Phylogenetic relations are those relations in which we are all linked together. Yeah, guys, phylogenetic relations are basically the genetics relations. So if you want to give a name to any species, if you want to put any species in a category, what you are doing is you will initially ensure about different pillars of modern taxonomy, including including the morphology, anatomy, cell, developmental challenges, and phylogenetic relations. And now what the topic is, let me see, what should I do now? 1 minute everyone. Okay. So now we are moving to the an earlier classification. Yeah, it is not an important topic of earlier classification, but yes, it is given in our NCERT, so we should cover now. देखो, you will know every about the classification in the chapter 4, I think, the biological classification, in which you came to know about, you will know about the 2 kingdom classification, the 3 kingdom classification, the 4 kingdom classification, and the 5 kingdom classification, along with 6 kingdom classification.
but a small part is also given in this chapter. So here is the earlier classification. It means the early people, the hunter gatherers, how classify different things. It means that how they categorize different things. So on the basis of their need, they categorize different things. For example, for food purposes, they categorized wheat, rice, and different eatable things, edible things in the category of food. For the purpose of wearing, they put all different things which are used for wearing, like cotton, jute, silk, in the category of you know clothes. And for the category of security, they all put some pets, including including horse, along with the dog, in the category of security. So these are basically the earlier classification. It means there was no scientific classification at the earlier time. It was just based on the need of people. It was just based on the need of early people, right? And now we are moving to the systematics. ठीक है? Yes, systematics तो है. Now we are moving to the systematics. ठीक है? तो systematics एक बहुत बड़ा topic. It is the biggest topic. Systematics बहुत बड़ी branch होती है. It is the biggest branch. Systematic is basically made up of taxonomy plus systematics is basically made up of taxonomy as well as phylogenetic relations. ठीक है? So what I'm telling you, that systematic is the biggest branch and it is made up of the phylogenetic relationship along with taxonomy. Right? You will came to know about in NCERT that Carolus Linnaeus also wrote a book which is Systema Naturalia. ठीक है? It is Systema Naturalia. ठीक है? So there will be a MCQ in the NEET PYQ that which book is written by the Carolus Linnaeus. So you will be marked that the book which is written by Carolus Linnaeus is Systema Naturalia. ठीक है? Now what the topic is? 1 minute, I am searching the topic. Biggest branch, I already told you about the biggest branch, which is systematics. And systematics is made up of taxonomy and evolutionary relationship, means phylogenetic relationship. I already told you. And along with this, I told you that Carolus Linnaeus wrote Systema Naturae, and one also, Species Planctarum. I forgot this. Species Planctarum is also wrote by the Carolus Linnaeus. Okay? And remember, and just always think about it, that systematics is derived from the systema, a Latin word. Okay, and now we are moving to the taxonomical hierarchy. It is an important topic. So what do you understand by taxonomy? I already told you about taxonomy. You think you know that about the taxonomy, that taxonomy is basically the scientific name for different categories and groups. It is derived from a taxa word. Okay? And what do you understand by hierarchy? Hierarchy is basically the sequence, right? Like you are very aware about different sequences. Okay? So we use the hierarchy in terms of sequence. For example, if I write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is the sequence which start from 1 and end up to the 10th. Okay. So here we are talking about a taxonomical hierarchy. It means the sequence of taxonomy, the sequence of different categories, the sequence of different scientific categories. Okay. So and this we'll know about there are about 7 taxonomical hierarchy. Okay, learn it by the trick, because I think this trick will be helpful for you. Keep podium clean. The trick is keep podium clean or fam got 6. Okay, keep podium clean or fam got 6. Actually call aa raha tha, sorry. Okay, keep podium clean or fam got 6. Keep sick kingdom, podium phylum, clean से classes or order, fam से family, god से genus, sick से species. Okay, keep podium clean or fam got sick. Keep podium clean or fam got sick. There are also, along with this, there are also some non-obligate categories, including subphylum, subkingdom. Okay, you will know about subkingdom in the chapter the animal kingdom, in which you came to know about subkingdom, subphylum, subkingdom including Eumetazoa, Parazoa, Parametazoa. Okay.
So what does exactly mean by such a taxonomical hierarchy? What do you understand by phylum? What do you understand by classes? What do you understand by kingdom? What do you understand by genus? What do you understand by species? Now the question asked it. Okay, this is the biggest question. Because रटना नहीं है हमें समझना है. We are not learning anything with the rectification. वो तो गलत चीज़ है. हम हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे and we are moving toward our path. हमारा पाथ है रीड क्लियर करना, वो आराम से हो जाएगा अगर एक एक क्लास को आप लोग फॉलो करोगे. बिकॉज आई कवर्ड ऑल दोज टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन NCERT अलॉन्ग विद द टॉपिक विच आर नॉट कवर्ड इवन इन NCERT. यू कैन जस्ट search your book, you will not be able to find such topics which I am going to tell you or which I went told you. I already told you I mean. So some topics I think मैं आपको extra देता हूँ which are important as for the need point of view. Okay. So I told you about taxonomical hierarchy. It is the arrangement of all taxonomic category and sequence. And now what we are moving to the, I think we'll cover this chapter by today. We'll finish this chapter by today because बहुत ही सब टॉपिक्स रह गए हैं. अब हम पढ़ेंगे स्पीशीज़ है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और आपका किंगडम के बारे में क्या क्या होता भी है इसमें. उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि मैं आपको थोड़ा सा फैमिलीज़ के बारे में इंट्रो दे दूँगा. इसके बाद मैं आपको फैमिली एनिमल्स और फैमिली प्लांट्स दोनों के बारे में इंट्रो दूंगा. ठीक है. उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि जैसे मैन है, ठीक है, होमो सैपियंस है, इनका क्या जीनस है, क्या स्पीशीज है, क्या फाइलम है, क्या किंगडम है. ऐसे ही मक्खी के बारे में पढ़ोगे आप लोग. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है. ये बस आपका बेसिक रहेगा अभी. ठीक है. लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग थोड़ा सा जान लें कि स्पीशीज़ क्या है, किंगडम क्या है, ये सब क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है. ठीक है. अब देखो मेरी बात समझ लो. अगर मैं कहूँ स्पीशीज़, ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस कह रहा हूँ, हायरार्की कह रहा हूँ ना, तो चाहे तुम पीछे शुरू करो चाहे तुम आगे शुरू करो, बात एक ही है. इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट द हायरार्की देन इट मीन्स दैट यू कैन, मतलब हायरार्की क्या है एग्जैक्टली, सीक्वेंस क्या होता है. चाहे आप 1 से 10 स्टार्ट करें या फिर 10 से 1 स्टार्ट करें, लेकिन एक सीक्वेंस में थिंग होनी चाहिए. 10 से पहले 9 आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट. एंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो हायरार्की कैसे हो सकती है? हम हायरार्की उल्टा भी ले सकते हैं और हायरार्की को हम लोग सीधा भी ले सकते हैं. इट्स अपॉन टू अस. ठीक है. इट्स अपॉन टू अस. देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, द ट्रिक विच आई टोल्ड यू दैट कीप पोटेम्पलिन और फैम गॉड सिक. सो हम लोग यहाँ पे स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आएगा. ठीक है. स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे. स्पीशीज़ में देखो बेसिकली विल केम टू नो अबाउट कि स्पीशीज़ में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती है. ठीक है. आप जितने भी कैटेगरीज़ को स्पीशीज़ में रखते हैं उनके पास मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती है. बेसिकली दे हैव द मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़. स्पीशीज़ से पहले हमारा आता है जीनस. ठीक है. की पोडेम्पलिन और फैम गॉट सिक गॉट आया ना हमारा. गॉट मतलब जीनस. जीनस में यू विल केम टू नो अबाउट कि जीनस में आप लोग जानोगे पॉलीटिपिक जीनस के बारे में, साथ ही साथ मोनोटिपिक जीनस के बारे में. इफ़ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मोनोटिपिक जीनस, तो ये एक ऐसा जीनस होता है जिसके पास एक ही स्पीशीज़ होती है. क्या एग्जाम्पल पता तुम्हें इसके? आई थिंक अभी नहीं पता होगा, लेकिन पता चल जाएगा. मैं अगर होमो कहूँगा, तो होमो मेरा हो जाएगा जीनस. सेपियंस जो हो जाएगा हमारा, सेपियंस, होमो सेपियंस का साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, राइट. तो होमो सेपियंस में होमो मेरा जीनस हो जाता है और साथ ही में सेपियंस होता है वो स्पेशीज हो जाता है. ठीक है. क्योंकि एक एपिथेट होता है, एक जीनस होता है. बताया था ना मैंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में कि अगर कोई भी हमें वर्ड को, कोई भी हमें साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है, कोई किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स का, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इनिशियली कैटेगराइज्ड इनटू, वी विल इनिशियली डिवाइड इनटू स्पीशीज एज वेल एज एपिथेट. So the initial word is species, which is in which we are knowing about कि पहला जो word होगा वो कैपिटल होगा और जो दूसरा हमारा स्पेशीज़ होगा वहाँ से आप स्मॉल लेटर में स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे मोनोटिपिक जीनस के बारे में, साथ ही साथ पॉलीटिपिक जीनस के बारे में. मोनोटिपिक जीनस एक ऐसा जीनस होता है विच कंटेन ओनली वन स्पीशीज. पॉलीटिपिक जीनस इज द जीनस विच कंटेन मोर देन वन स्पीशीज. एग्जाम्पल बताऊँ? देखो बहुत अच्छा समझ में आता है. अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ मोनोटिपिक जीनस के बारे में, दैन विल केम टू नो अबाउट कि मोनोटिपिक जीनस में एक ही स्पीशीज होती है. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस. होमो मेरा जीनस हो गया, सेपियंस जो हो गया मेरा हो गया स्पीशीज. ठीक है. तो होमो के पास सिर्फ जो होमो है, होमो जीनस, उसके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज है, सेपियंस. आप होमो से और चीज़ों को नहीं बना सकते. एक होमो के जीनस से, एक जीनस जो होमो है, इससे आप डिफरेंट और स्पीशीज़ को नहीं क्रिएट कर सकते हो. मतलब और जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो होमो के साथ नहीं बोली जा सकती है.
लेकिन वहीं पे पॉलीटिपिक जीनस होते हैं दोज जीनस विच कंसिस्ट विच कंटेन्स इवन मोर देन वन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, सोलेनम, भाई आलू की फैमिली, सोलेनम सोलेनेसी, ठीक है, आलू की फैमिली क्या होता है, सोलेनेसी। तो सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलेंजीना, ओके, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलेंजीना एंड सोलेनम ट्यूबरसम। अगर बात करूँ सोलेनम ट्यूबरसम का, तो इसका मतलब देखो सोलेनम स्टार्टिंग है, तीनों में सेम है, लेकिन ट्यूबरसम है, मेलेंजीना है, निग्रम है, ये डिफरेंट है, स्पेशीज यहाँ पे डिफरेंट है। सो इट कंटेन्स मोर देन वन स्पेशीज, ठीक है, इट कंटेन्स मोर देन वन स्पेशीज। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, क्योंकि खराशे हो गई हैं, बट सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सोलेनम ट्यूबरसम का मतलब होता है आलू, पटेटो, एंड सोलेनम निग्रम का मतलब होता है आपका भाई क्या चीज़, सोलेनम निग्रम का मतलब होता है मकई, मकई खाई होगी आप लोगों ने। साथ ही में सोलेनम मेलेंजीना जो होता है भाई आप लोग जो बैगन खाते हैं, हाँ भी बैगन वही ब्रिंजल, उसका मतलब जो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम निग्रम। तो सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलेंजीना, यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज हम देख सकते हैं विद द सेम जीनस। तो ये आपका पॉलीटिपिक जीनस हो जाएगा, ठीक है। सेम एज पैंथेरा लो एंड पैंथेरा टिग्रिस, समझा होगा ना, पैंथेरा ल्यू क्या होता है लाइन एंड पैंथेरा टिग्रिस व्हाट, टाइगर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे आगे चल के और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप पैंथेरा जानो तो पैंथेरा सेम जीनस है, लेकिन स्पीशीज डिफरेंट है, लियो और टिग्रिस, ठीक है। अब क्या आता है, हमारा ऑर्डर आता है, ठीक है, ये फैमिली आती है पहले, हाँ की कोडिंग और 5.6 या फैमिली आती है। फैमिली में देखो, फैमिली में क्या पढ़ोगे, फैमिली वही है कि इसमें मैं डेफिनेशन बताता हूँ, प्लांट्स आर केप्ट इन सेम फैमिली व्हेन दे हैव सिमिलर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब प्लांट्स को आप तब एक फैमिली में डालो, यू विल पुट ऑल द प्लांट्स एट द सेम फैमिली जब उनके पास सेम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स होंगे। व्हाट आर द वेजिटेटिव फीचर्स एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स? वेजिटेटिव फीचर्स इंक्लूडिंग स्टेम, रूट एंड लीव्स। जब उनके पास सेम काइंड ऑफ लीव्स होगी, सेम काइंड ऑफ स्टेम होगी, सेम काइंड ऑफ रूट होगी, तो हम लोग वी आर पुटिंग दैम इनटू द फैमिली, इनटू द सेम फैमिली, ठीक है। वैसे ही बात करूँ अगर मैं आपकी उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, इंक्लूडिंग एंडोशियम, इंक्लूडिंग गाइनोशियम, स्टेमन पिस्टल, जानते हो ना भाई, हाँ, जो कि काफ़ी हमारे एसेसरी होल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होल्स होते हैं भाई, नेसेसरी होल्स, जानते होंगे गाइनोशियम के बारे में और ऐसा एंडोशियम के बारे में। तो अगर यहाँ पे ये सेम हो रहा होगा तो हम लोग इनको एक फैमिली में डालेंगे, एक फैमिली में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हिंदी बोल रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम हो रही है, देखो किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो जस्ट कमेंट मी, एंड किसी को प्रॉब्लम हो हिंदी अगर बोल रहा हूँ तो आप लोगों को अगर इंग्लिश में चाहिए, आई एम एबल टू डू दिस, ठीक है। मैं दोनों लैंग्वेज में अच्छे से बोल सकता हूँ, तो जस्ट में आप लोग चाहें, आई एम एबल टू डू दिस, ठीक है, मैं बना सकता हूँ उसमें वीडियो, ठीक है भाई। उतना अंग्रेजी नहीं हो लेकिन हाँ चल जाएगा, उतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, उतना मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है देखो, यहाँ से भी किंगडम, कीप पोडियम क्लीन और फैम गॉड से, ऑर्डर बीच का बंदर होता है, ऑर्डर जो होता है बीच का बंदर होता है, मतलब यहाँ से किंगडम, फाइलम, क्लास और फैम, फैमिली, गॉड, जीनस एंड सेक्ट, इनके बीच में आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर बेसिकली बीच का बंदर होता है, यहाँ पे एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट फॉर्म ऑफ सिमिलरिटीज़ होती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सिमिलर भी नहीं होगा और ज़्यादा डिसिमिलर भी नहीं होगा, ठीक है। जो हम लोग चीज़ डालेंगे, डालने का मतलब आप समझते हो ना, जिस चीज़ को हम ऑर्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। हम ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सिमिलरिटी, ज़्यादा भी नहीं सिमिलरिटी होती, ज़्यादा कम भी सिमिलरिटी नहीं होती है, ठीक है। ऑन दिस बेसिस वी आर पुटिंग डिफरेंट स्पेशीज इन द ऑर्डर, वी आर गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स टू डिफरेंट स्पेशीज, ठीक है। फिर क्लास आता है, फाइलम आता है और उसके बाद आखिरी में आपका आता है किंगडम। किंगडम में क्या होता है, देखो जैसे कि बताया मैंने आपको कि स्पेशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है, वहीं पे किंगडम पे सबसे लोएस्ट सिमिलरिटीज़ होती हैं। यहाँ जितने भी स्पेशीज़ होंगे, यहाँ जितने भी आपके एनिमल्स वगैरह मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें सबसे कम सिमिलरिटीज़ मिलेंगी किंगडम में, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, स्पेशीज़ के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या इसके बारे में, जीनस के बारे में। तो जीनस को बेसिकली हम लोग कहेंगे ग्रुप ऑफ सिंपल स्पेशीज़, ठीक है। जीनस के बारे में, जीनस के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली। फैमिली में हम लोगों ने समझा कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ सिंपल जीनस। फैमिली के बाद हम लोगों ने ऑर्डर में पढ़ा, तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ सिंपल फैमिली। ऑर्डर के बाद हम लोगों ने बेसिकली क्लासेस के बारे में पढ़ा, विच इज़ द ग्रुप ऑफ सिंपल ऑर्डर। एंड क्लासेस के बाद वी आर मूविंग टू द फाइलम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ग्रुप ऑफ सिंपल क्लासेस। फाइलम के बाद वी आर मूविंग टू द किंगडम, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ सिंपल फाइलम, ठीक है। इसके बाद टॉपिक क्या आता है,
बहुत छोटे टॉपिक बचते हैं आपके। ओके, वैसे ये मैं कल करा सकता हूँ अगर आप लोग कहो, लाइव चल नहीं रही बट पूछ लेता। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, मुश्किल से मुश्किल ही आपका 10-15 मिनट का टॉपिक बचा है, लेकिन आज की क्लास लॉन्ग हो जाएगी। बट वैसे इजी तो बहुत है, कर तो लोगे भी क्रैक, क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है। ज़्यादा क्या आपका वही रह गया कि डिविजन्स रह गए, इसमें आप लोग समझोगे, कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ोगे, जैसे पॉलीमोनियल्स हो गया, रोजेल्स आ गया, इनके बारे में पढ़ोगे। बता दूँ या ना बताओ, क्या सोचते हो भाई? यार एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बताऊँगा। चलो बना लेंगे अगला पार्ट, ठीक है। इतनी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, 20 मिनट से ज़्यादा जो वीडियो होती है वो देर में अपलोड होती है, ठीक है। कोई सेटअप तो है नहीं अच्छा मेरे पास जिससे मैं कुछ अच्छे से कर पाऊँ, फिर एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ। ओके, तो और अपना भी काम करना मुझे, तो आई थिंक ठीक है यार, इतना आज के लिए सही है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा फाइनल, मैक्स टू मैक्स आपका 15 से 17 मिनट का होगा टॉपिक। उसमें हम लोग जानेंगे डिविजन्स के बारे में, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी फैमिली में कुछ फैमिली के बारे में जानेंगे, ठीक है। एनिमल्स में आप लोग प्राइमेटा के बारे में जानोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसमें आपको मैं याद करा दूंगा कि ह्यूमंस जो होते हैं उनका क्या साइंटिफिक नेम होता है, साथ ही साथ उनकी जीनस क्या होती है, स्पेशीज़ क्या होता है, उसका पता दूंगा, ठीक है भाई। होमो सैपियंस है तो होमो हो गया, जीनस उससे है, स्पेशीज जो हो जाएगी उसकी सैपियंस हो जाएगी, ऐसे जो क्लासेस हो जाएंगी सब बता दूंगा। क्लासेस है, फैमिली है, होमनिडी इनकी फैमिली होती है, ठीक है, सब हो जाएगा। क्लासेस बता दूंगा, फाइलम बता दूंगा, एकदम कौन से एनिमल क्या है, हो जाएगा, एवरीथिंग विल कवर। So this is all about today's lecture. I think that you will definitely like it. And मुझे यार प्लीज़ बता देना किस मोड में तुम लोग कंफर्टेबल हो, इन हिंदी और इन इंग्लिश और इन बोथ, ठीक है, बता देना। बिकॉज आई एम वरिंग अबाउट इट, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आता है कि हाँ इंग्लिश ठीक है, नॉट इन यूट्यूब, ठीक है, सोशल मीडिया में आता है, मेरे इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में आता है कि हाँ इंग्लिश ठीक है, या फिर कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि हिंदी में ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। इट्स अपॉन टू यू, ठीक है, जैसा बताओगे वैसा कंटेंट मिलेगा। एंड मैक्स टू मैक्स बहुत ही बेटर कंप्लेंट आपको कंटेंट मिलेगा। कोई कंप्लेंट हो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं उसको डेफिनेटली पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस लेक्चर। सो इफ यू लाइक दैट प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।